Welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and now we are discussing about Manual of Office Procedure. This is the latest edition. It is this edition is available on DOPT site. So now in this session we are going to discuss about public grievance redressal mechanism. Whenever we are doing some public duty, some shortcoming may be there, some faults may be there, some grievances may be there. So we have to redress the public grievances, and for that some mechanism is required, and that mechanism is known as public grievance redressal mechanism. So in this session we will be discussing about the main guidelines on grievance redressal, Central Public Grievance Redress and Monitoring System, that is CPGRAMS, issues not taken up for redressal of grievances, and appeal is also there, it is missing, I will add. So let us learn each one by one. Before that, those who have subscribed, I am thankful to them, and those who have not subscribed, it is requested that they should subscribe, like, share and comment, so that they can get the instant notification and study well. Main guidelines on security and grievance redressal is a grievance should be disposed of within 45 days, and in case of delay an interim reply with reason for delay should be furnished. So जितने भी प्रकार के ग्रीवेंस आते हैं, शिकायतें आती हैं, पब्लिक शिकायतें आती हैं, उनका निपटारा हमें 45 डेज में करना है. अगर ऐसा लगता है कि उसके रिजोल्यूशन में हमें 45 डेज से ज़्यादा रिड्रेसल में हमें 45 डेज से ज़्यादा का समय लगेगा, तो हमें क्या करना है, एक इंटरिम रिप्लाई भेज देनी चाहिए कि हाँ ये हम आपका कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी हम रिप्लाई दे देंगे. और वेल रीजन्ड स्पीकिंग रिप्लाई शुड बी गिवन वाइल क्लोजिंग ए ग्रीवेंस एंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड. कहने का मतलब कि जब भी ग्रीवेंस को क्लोज करेंगे जैसे तैसे नहीं क्लोज करेंगे, जो भी रिप्लाई देंगे स्पीकिंग रिप्लाई होंगे. स्पीकिंग रिप्लाई का मतलब ये होता है रीजन्ड होगा, ऑन विच बेसिस आई एम गिविंग दिस रिप्लाई. आपने ये पूछा है, हमने ये पता किया, और इस बेसिस पे हम नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये आपको हम रिप्लाई देते हैं. दैट इज कॉल्ड रीजन्ड स्पीकिंग रिप्लाई. Each ministry, department, state, union territory should have a senior officer of the level of deputy secretary or above designated as director of public grievances. So director of public grievances एक रहेंगे, and इनके पास जो है he can be approached in case of grievances not redressed. If our citizen is not satisfied, if citizen is not satisfied, he can approach to director of public grievance. The name, designation, room number, telephone number of the director of public grievance should be displayed prominently at the reception office and other convenient places in the office building so that citizens are fully aware of it. So जो भी designated director of public grievance होंगे, उनका नेम, डेजिग्नेशन, रूम नंबर, टेलीफोन नंबर, कंटेक्ट डिटेल्स जो होगा वो रिसेप्शन के पास ही डिस्प्ले कर दिया जाएगा, सो दैट इट इज़ अप्रोचेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. This information is also available on pgportal.gov.in in respect of all ministry, departments, states, union territory. pgportal.gov.in. Every Wednesday of the week between 10 am to 1 pm has been earmarked for receiving and hearing of grievances by director of public grievance. So जो public director of public grievance होंगे, इनको every Wednesday of the week has been given as between 10 am to 1 pm. He will be hearing the grievances and he will try to find out the solution. So it is every Wednesday of the week between 10 am to 1 pm. टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते, डेट चेंज नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो वेल इन एडवांस इंटीमेट करना पड़ेगा. अ लॉक्ड कंप्लेंट बॉक्स विल बी ओपनड एट द रिसेप्शन ऑफिस of the ministry department for convenient registration of the complaint by members of the public, which must be opened by designated officer at the regular. So क्या करना है, वैसे तो आजकल बॉक्स का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, फिर भी
जब तक चल रहा है तब तक एक लॉक्ड कंप्लेंट बॉक्स वहाँ पर रखे जाएंगे और वो ओपन किए जाएगा एप्रोप्रिएट ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद से क्या है, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, पॉपुलरली नोन एज सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम के बारे में हम सब परिचित हैं और इसको सीपी ग्राम जो है शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस redress and monitoring system based upon web technology was established in June 2007 with the aim to enable, facilitate and aggrieved citizen to lodge a grievance from anywhere in any part, that is 24/7 on pgportal.gov.in. The CP Grams enables a citizen to lodge a grievance to any of the ministry, department or state government. The functioning and various features of the CP Grams are as under: the PMO, President's Secretariat, Directorate of Public Grievance, Cabinet Secretary, DA/RPG and the Pensioners Portal are integrated through CP Gram. सो सीपी ग्राम में पीएमओ कहा जाता है, प्रेसिडेंट कहा जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। इन सबको मिला करके सीपी ग्राम बनाया गया। सीपी ग्राम इंटरलिंक्स all the 87 central ministries, departments, organizations existing as on date, as well as all the 36 state governments and union territories. So CP ग्राम में गवर्नमेंट के जो 87 डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनका भी और 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी हैं, इन सबको यहाँ पर इंटरलिंक किया गया है। On lodging of a grievance online, a unique registration number is generated to the citizen through CP Grams to enable online tracking of the grievance, giving reminders or comments by the citizens. So, जैसे ही उस पर हम लॉज करते हैं कंप्लेन, लॉज करते ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जिसके द्वारा इसको ट्रैक किया जा सकता है, रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं, कमेंट्स किए जा सकते हैं। The acknowledgement of the unique registration number of the grievance register online is sent via email to the email address indicated or by SMS on the phone number indicated by the citizen while lodging the grievance. In case the grievance is lodged offline by post, the same is uploaded on CP Gram and an acknowledgement letter is generated through the system which is sent to the citizen by post. So ऑफलाइन की भी व्यवस्था है, अगर ऑफलाइन कुछ आता है तो उसको डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उनको एक एक्नॉलेजमेंट जो भेजा जाएगा बाई पोस्ट। द फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर डिनोट इंडिकेट द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू होम द ग्रीवेंस हैड बीन लॉस्ट। So MCQ point of view, first 5 alphabets of the registration number denotes the ministry department to whom the grievance had been lodged. इसके बाद से क्या है इसमें, there is a provision of lodging a grievance which will be automatically forwarded to field level directly. So इसमें क्या है, कोई रीडायरेक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, जो कंप्लेन लॉज हो गया उसमें वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता है जिससे रिलेटेड है वो। The system enables ministry department to take appropriate action and upload the action taken report ATR. सो जो भी ग्रीवेंस है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उसको उस पर अपलोड करना है बाय ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ऑन द सिस्टम विच कैन बी व्यूड बाय सिटीजन्स ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। द सिस्टम इनेबल्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू डिक्लेयर देयर respective subordinates organization for the grievance redressal. CP Gram generates various reports for monitoring of public grievance which facilitate identification of grievance prone area and enables systematic changes. Citizen satisfaction feedback rating mechanism is available on CP Grams. Public grievance record on CP Grams are achieved after a period of 5 years. सो 5 years तक वो रहता है वहाँ पे, 5 years के बाद से उसको आर्चीव में डाल दिया जाता है। सो ये सीपी ग्राम जो है इसमें क्या करते हैं, सीपी ग्राम में इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो
कंसर्न एजेंसी के पास वो रीडायरेक्ट हो जाता है। कंसर्न एजेंसी उसको सॉल्व करके एक्शन टेकन रिपोर्ट उस पर अपलोड करती है। उसमें सिस्टम इनेबल्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू डिक्लेयर द रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसर। मिनिस्ट्री के अंदर में किससे रिलेटेड है वो उसको इंश्योर करते हैं। इट जनरेट्स वेरियस रिपोर्ट्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस and citizen satisfaction feedback is also available on CPGram. Public grievance records are kept for 5 years and after that it is sent to archive. Now, issues not taken up for redressal of grievances are as under. Some issues are not taken up for the grievances. Which are those? Sub judice cases or any other matter concerning judgment given by court. तो जिस पर जो मैटर सब जुडाइस हो, जो मैटर कोर्ट में विचाराधीन हो या जो मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर रखा हो, उसको आप जहाँ मन करें वहाँ कंप्लेन कीजिए, हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो कोर्ट का जुरिडिक्शन है। कोर्ट ने के विचाराधीन है तो कोर्ट डिसाइड करेगा और अगर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है तो उसके डिसीजन को फॉलो करना है। इसलिए हम जो ग्रीवेंसेज हैं ऐसे ग्रीवेंसेज एक्सेप्ट नहीं करते, इसका कोई रिप्लाई हम नहीं देते। पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट, घर में पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, उसको कोई अपलोड करेगा CPGrams पे, इस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन मैटर्स, जो RTI का इन्फॉर्मेशन है वो RTI में ही डालना है, उसको रिड्रेसल में नहीं डालना है। एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स अपॉन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे ही चीज़ों को हम कंप्लेन कर सकते हैं जो हमारे परव्यू में हो, ऐसी चीज़ों को कंप्लेन करें जिससे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी इंडेंजर्स हो जाए, ऐसा काम हम नहीं कर सकते और इसका रिप्लाई का उम्मीद भी नहीं कर सकते। सजेशन का ये जो ग्रीवेंस सेटलमेंट पोजीशन है, ये सजेशन का बॉक्स नहीं है, सजेशन के लिए अलग होता है। एनी कंप्लेन सेंट बाय ईमेल विल नॉट बी अटेंडेड इंटरटेंड एज द पब्लिक ग्रीवेंस इज टू बी लॉज्ड ऑन द वेबसाइट। बहुत लोग ईमेल से कंप्लेन भेज देते हैं। जब से CPGram लागू हो गया है तब से ईमेल से भेजा हुआ कंप्लेन का कोई कोग्निजेंस नहीं होगा, आपको CPGram पर ही अपलोड करने हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, दीज आर द इशूज नॉट टेकन अप फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज अंडर गिवन हियर। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट अपील मैकेनिज्म इन CPGrams। हो सकता है कि टाइमली हम रिप्लाई नहीं दे पाएँ, 45 डेज हमारा टाइम है, 45 डेज में हम रिप्लाई नहीं दे पाएँ, इंटरिम रिप्लाई भी नहीं दे पाएँ, तो उस सिटीजन के पास ऑप्शन तो होना चाहिए अपील के लिए। आफ्टर क्लोजर ऑफ ग्रीवेंस बाय द नोडल पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, द कंप्लेनेंट कैन प्रोवाइड फीडबैक इफ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजोल्यूशन। सो किसी का कंप्लेन था, कंप्लेन को हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद से हमने क्लोज कर दिया। But if the citizen is not satisfied, then option is open for appeal. If the rating is poor, the option to file an appeal is enabled. वो रेटिंग में अगर पुअर देते हैं तो क्या करते हैं, अपील ऑप्शन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील इज़ 30 डेज। 30 दिन के भीतर अपील को डिस्पोज ऑफ करना है। जो कंप्लेन आया था 45 डेज में, अपील को 30 डेज में। Every ministry department should have a nodal authority, appellate authority, details of whom are to be given in the portal, namely at PG portal. The nodal appellate authority should be one level above the designated nodal public grievance officer. सो इनसे एक रैंक ये ऊपर होंगे। NAA क्या है, नोडल अपीलेट अथॉरिटी। नोडल अपीलेट अथॉरिटी कैन क्रिएट सब अपीलेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। सो अगर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो इस कंडीशन में सब अपीलेट अथॉरिटी क्रिएट की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने जो ये डिस्कशन किया, ये ग्रीवेंस मैकेनिज्म, सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म के बारे में हमने बात किया। चाहे जितनी भी अच्छी आप काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो शिकायतें रहेंगी, कुछ ना कुछ तो कंप्लेन रहेंगे, लेकिन पब्लिक को सेटिस्फाई करना हमारा ड्यूटी बनता है, हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटी में आता है। इसलिए
जो ये सीपी ग्राम है, सीपी ग्राम को लॉन्च किया गया है। सारे कंप्लेन इसी में डालने हैं और सारे आंसर भी इसी में डाले जाते हैं, उसके सॉल्यूशन भी इसी में डाले जाते हैं। 45 डेज़ का टाइम दिया हुआ, अगर 45 डेज़ में नहीं होता है और पुअर रेटिंग होती है तो ही कैन गो फॉर अपील, एंड अपील जो है डिस्पोजल दिया गया है, 30 डेज़ का टाइम दिया गया है अपील में डिस्पोजल के लिए। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से ये कंप्लेन मैकेनिज़्म, ये ग्रीवेंस मैकेनिज़्म, ये ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज़्म आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है ना। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया वो भी लिख दीजिए नहीं समझ में आ गया, ठीक है। आज का नीति श्लोक, पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जपतो नास्ति पातकम, जागृतस्तु भयम नास्ति, कलहो नास्ति मौनिनः। अर्थात जो विद्या अध्ययन करते हैं उनमें मूर्खता नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये है कि विद्या जो है मूर्ख का दुश्मन है। विद्या अध्ययन करते करते हम जो है मूर्खता से सरलता के तरफ, मूर्खता से सज्जनता की तरफ, मूर्खता से ज्ञानी की तरफ बढ़ने लगते हैं और विद्या से हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो जो विद्या अध्ययन करते हैं वो मूर्ख नहीं हो सकते, वे ज्ञानी हो सकते हैं। जो जप करते हैं उन्हें पाप नहीं कर सकते। जप करना मतलब भगवान का नाम लेना। तो जो जप करते हैं उससे पाप नहीं हो सकते। जो जागरित रहते हैं मतलब जो जगे हुए रहते हैं, जो जगे हुए रहते हैं उनको कोई भय नहीं सता सकता। सोएंगे उसके बाद से ही, सोने के बाद से बॉडी जो होती है हाफ डेड हो जाती है और उसी में भय लग सकता है। जब तक जगे हैं तब तक सामने वाले की भी 2 हाथ पैर हैं और हमारे भी 2 हाथ पैर हैं। अगर मुसीबत आई तो डट कर हम मुकाबला करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। डर उसी को लगता है जो सोया हुआ होता है, और जो मौनी होता है उसका किसी से कलह नहीं हो सकता। मौनी का मतलब यह होता है कि मौन धारण करने वाले। कुछ लोग होते हैं वाचाल, बहुत बोलते हैं। जब बहुत बोलते हैं तो बहुत बोलने वाले कभी कभी गलत भी बोल लेते हैं, बहुत बोलने वाले कभी कभी व्यग्र भी हो जाते हैं, बहुत बोलने वाले कभी कभी क्रोधी भी हो जाते हैं और इससे वो कलह पैदा कर लेते हैं, अपना शत्रु पैदा कर लेते हैं। जो कम बोलते हैं, जो कैलकुलेटेड बोलते हैं, चाहे जो मौन धारण करके रहते हैं, बोलते ही नहीं हैं, हमारी जितनी भी शत्रुता है, हमारी जितनी भी कटुता है वो हमारी वाणी से ही होती है। अगर वाणी मधुर है तो आप हमारे मित्र हैं, और अगर वाणी कठोर हो गई तो आप हमारे शत्रु हो गए। तो यही तो है व्यवहारेण मित्राणि जयंती। इस धरती पे मित्र और शत्रु जो होते हैं वो हमारे व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। हमारे व्यवहार अच्छे हैं, हमारे सब मित्र हो जाएंगे। हमारे व्यवहार खराब है, हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे। सो इसलिए व्यवहार को ही अच्छे रखने हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर 3-4 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको लगता है कि आप मूर्ख हैं, मूर्खता को दूर करने का उपाय विद्या अध्ययन होता है। पाप दूर करने का उपाय जप करना होता है। भय दूर करने का उपाय जागृत रहना होता है। और कलह दूर करने का उपाय मौन रखना होता है। कभी कभी पति पत्नी में भी अनबन हो जाती है। उनको ये सलाह दिया जाता है कि जब पति महाराज भड़क गए हों तो पत्नी जी चुप हो जाए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, अपने आप पति महाराज शांत हो जाएंगे। और अगर पत्नी महाराज भड़क गई हों तो पति देव को भी 1 गिलास पानी पी करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए 2-4 मिनट के लिए। ये 2-4 मिनट का तुषारपात है और उसके बाद से समझ लीजिए कि फिर से मधुर वर्षा होने लगती है। अगर पति बोलती है, अगर पति बोलते हैं और पत्नी हल्ला करती है, पत्नी बोलती है और पति शाउट करते हैं, तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप में से कोई एक मौन धारण करेगा। जैसे मौन धारण कर लेंगे उसके पास फ्यूल नहीं मिलेगा, वो किस चीज़ पर बोलेगा। हम एक बात बोलेंगे उसको 11 बात में बोलेगा, वो दूसरी बात हम बोलेंगे नहीं, उसी में धीरे धीरे वो खत्म, उसकी बातें खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बड़ा ही गूढ़ बात बताया गया इस नीति श्लोक में कि जो विद्या अध्ययन करते हैं उनमें मूर्खता नहीं रह सकती, जो जप करते हैं उनमें पाप नहीं रह सकते, जो जागरण करते हैं उनको भय नहीं सता सकता, और जो मौन धारण करते हैं उनका किसी से कलह भी नहीं हो सकता है। प्रयत्न करके देख लीजिए।
So those who have subscribed, I am thankful to them, and those who have not subscribed, please do like, subscribe, share and comment. We'll meet in the next class. Till then,